الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا آپ سے، انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم پورا کا پورا ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے ناطے سے انسان کے لیے بہت بڑی بات و نصیحت ہے، اور ہر لفظ ہی اپنے طور پر بہت بڑے اپنے اندر سبق اور عبرتیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی شک نہیں کہ قرآن کے اس باغیچے کے اندر سے بعض ایسے خاص جگہ ہیں، خاص ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے فائدے اور جن کے سبق دوسروں سے بڑھ کر ہیں۔ انہی میں سورہ یوسف ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی جگہ پر بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور مختلف انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، مختلف جگہوں پر اور مختصر انداز سے۔ کسی جگہ پر ان کی زندگی کے کچھ حصے کا بیان ہوا ہے، اور دوسری جگہ پر ان کی زندگی کے دوسرے حصے کا بیان ہوا ہے، لیکن سورہ یوسف میں یا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ پورا کا پورا ایک ہی جگہ پر پورے قرآن میں اور ایک ہی صورت میں، اور بلکہ ایک پورے قصے کہانی کی طرح۔ اس لحاظ سے بڑا دلچسپ واقعہ ہے، دلچسپ قصہ ہے جسے ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی دلچسپی صرف اس کا واقعہ قصہ ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے جو درس اور سبق عبرتیں رکھی ہیں۔ اس میں مصیبتوں پر، پریشانیوں اور غموں پر صبر کرنے کا بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی تدبیر کے حوالے سے کہ اللہ کی تدبیریں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کیسے اس کو پورا کرتا ہے، اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں اس کائنات میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اس صورت کے اندر ہم کو اس طرح کی بہت بڑی چیزیں پڑھنے کو ملیں گی۔ اسی طرح اس صورت کے بڑے اہم ترین جو اسباق و دروس ہیں کہ جب فتنوں کا دور ہو، اور نہ کہ فتنے کرنے کا یا گمراہیوں میں پڑنے کا موقع ہو، بلکہ گمراہیاں انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں، فتنے اپنی طرف انسان کو کھینچ رہے ہوں، اور طرح طرح کی دنیا کی لذتیں، وہ چیزیں جو انسان کو اپنی طرف لا رہی ہوں، ان حالات میں بھی انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم کو اس میں بہت بڑا سبق دیتا ہے، اور خصوصاً آج کے فتنوں کے اس دور میں ہر انسان، ہر مسلمان کو ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، کہ واقعی اس طرح کی کیفیتوں میں ایک مسلمان مومن اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرتا ہے اور فتنوں سے کیسے بچتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں صورت کے اندر کہ طرح طرح کی مایوسیوں کے بعد اللہ کی رحمتوں کے دروازے کس انداز سے کھلتے ہیں، اور کس انداز سے مایوسیوں کے بادل چھٹتے ہیں۔ ایک طرف اس صورت کے اندر بڑے غم کے پہلو ہم کو ملیں گے، اور دوسری طرف ان غموں کے ساتھ ساتھ بڑی خوشیاں اور مسرتیں بھی وہ آپ کو پڑھنے کو، سننے کو ملیں گی۔ ایک طرف دشمنوں کے اور طرح طرح کے جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، حقد کرنے، ان کے طرح طرح کی سازشیں، ان کے طرح طرح کی انسانوں کے، لوگوں کے خلاف جو ان کے کرتوت ہیں، ان کا آپ کے بیان ملے گا، اور اس کے مد مقابل اللہ کے نیک بندوں کا صبر و استقامت، ان کے ظلم پر، ان کی زیادتیوں پر ہم کو یہ چیزیں بھی اس صورت کے اندر ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ صورت جو ہے حقیقت میں بڑی عظیم صورت ہے،
اور ये वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाद औक़ात नमाज़ों में इस सूरत की तिलावत करते हैं, और ख़ुसूसन सहाबा इकराम उमर फ़ारूक के बारे में आता है कि वो अक्सर बेशतर इस सूरत की तिलावत किया करते थे फजर की नमाज में। किस लिए? या हमने जो चीज़ें बयान की हैं, इन्हीं चीज़ों को यानी कि इनसे सबक हासिल करने के लिए खुद भी और सुनने वालों को भी। तो ये सूरत जो मक्की सूरतों में से है, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था मक्की और मदनी सूरतों के बारे में, कि कुरान के वो सूरतें जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई मक्की सूरतें, और इस सूरत का मौजू हमने थोड़ा उसका खुलासा बयान किया है, समझ दी है। मज़ीद उसमें ये भी है कि इस सूरत का मक्की होने के लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के लिए इसमें बहुत बड़े क्या हौसला अफजाई के सबक थे कि मक्का जो आपका शहर था, और न कि सिर्फ आपका शहर था बल्कि आपकी कौम का शहर था, कुरैश, आपका कुनबा कबीला ख़ानदान सभी यहीं पर थे, और यही वो लोग थे जो आप के सबसे पहले दुश्मन थे, जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जो आपको अज़ियत देने वाली हो, आपका नुकसान करने वाली हो, उसमें कोई कमी की हो। 13 साल तक मुसलसल आपके ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें, तरह तरह की बगावतें, बल्कि आपको हत्ता के कत्ल तक करने की, शहीद तक करने की साजिशें, और आपको नहीं सिर्फ बल्कि पूरे आपके घर वालों को, आपके ख़ानदान को किस अंदाज से उनके साथ बाइकाट किए जा रहे हैं, आपके सहाबा, आप पर ईमान लाने वालों पर बेइंतहा जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो इन हालात में अल्लाह ने ये सूरत आप पर नाज़िल की ताकि आपको इस सूरत से, इन गमों से, इन परेशानियों से, इन मुखालफतों से सबक मिले कि वाकई अल्लाह ताला की रहमतें किस कदर करीब होती हैं। हाँ, मायूसियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह के वादे जो मदद नुसरत के हैं, वो भी कितने करीब होते हैं। तो ये है इस सूरत के हवाले से, मक्की सूरतों में से है। तो हम अल्लाह की तौफीक से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा। ये 3 हर्फ हैं जो हरूफ मुक़त्तआत जिनको कहा जाता है, जिस तरह अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं हम सूरह बकरा के शुरू में, और भी कई सूरतों के शुरू में ये हरूफ आते हैं। और इन हरफों के बारे में उलमा का जो सही कौल है वो ये है कि इनका ज़ाती माना तो कोई नहीं है, क्योंकि अलिफ बा ता सा जीम हा खा जो हरूफ तहजी हैं, अल्फ़ाबेटिक है, ज़ाहिर बात ना अलिफ का कोई माना है ना कोई बा का ख़ास माना है। तो माना तो इनका अपने तौर पर इन हरूफ का नहीं है कोई ऐसा जो हमारे सामने हो, लेकिन कुरान में कोई भी ऐसा हर्फ नहीं जो बग़ैर मकसद के हो। लफ्ज़ तो बड़ा होता है, हर्फ भी ऐसा नहीं कि जो बग़ैर मकसद के हो। तो चुनाचे इन हरूफ का मकसद क्या है? आप देखेंगे कि अमूमन ये हरूफ ज़्यादातर मक्की सूरतों के शुरू में आते हैं, अगरचे कभी कभार मदनी सूरतों के शुरू में आते हैं, जिस तरह सूरह बकरा, सूरह आल इमरान है, लेकिन अमूमन मक्की सूरतों के शुरू में है। और इन हरूफ के बाद अगली आयत जो है अमूमन कुरान करीम के बारे में होती है। इन हरफों के बाद उसके बाद की अगली आयत अक्सर उसमें कुरान करीम का जिक्र होता है। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं वाज़ेह खुली रोशन किताब यानी कुरान करीम की। तो फिर इसका मतलब इन हरूफ का सूरतों के शुरू में लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। मकसद क्या है कि मक्का के कुरैश जो कुरान को झुटला रहे थे, इस पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तानबाजियाँ करते थे कि आपने खुद अपनी तरफ से घड़ा बनाया है, किसी से तुम सुनकर हमें सुना देते हो, इस तरह की बातें करते। अल्लाह ने फिर इन काफरों को चैलेंज किया कि अगर तुम समझते हो कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से बनाया है, तो तुम भी बनाओ, तुम भी अरब हो और तुमको भी अपनी अरबी फसाहत व बलागत पर बड़ा नाज है, तो अगर ऐसी बात है तो तुम भी इस जैसा कुरान ले आओ। एक चैलेंज ये था। ये चैलेंज किसी ने कबूल नहीं किया। अल्लाह मैं कि चलो कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरतें ले आओ। 10 सूरतों को चैलेंज भी पूरा नहीं कर सका। अल्लाह माता कि चलो एक सूरत ले आओ। एक सूरत का भी चाहे कोई चैलेंज पूरा ना कर सका। अल्लाह माता कि चलो कुछ कुरान जैसी कुछ चीज़ ले आओ।
कि 4 तरह के चैलेंज कुरान करीम में अल्लाह ने इन काफिरों को किए हैं जो क़यामत तक बाकी हैं, और आज तक ना कोई इस चैलेंज को कबूल कर सका है और ना कोई कर सकेगा। कैसे कर सकेगा कि रब्बुल आलमीन के कलाम के मुकाबले में कौन इंसान है, कौन सा इंसान है कि जो बड़ा से बड़ा भी अपनी ज़बान में फसीह हो, बलीग हो, तो अल्लाह के रब्बुल आलमीन के कलाम के उसके मुकाबले में कुछ नहीं ला सके। तो इन हरफों का फिर मकसद क्या है? इन अरबों को चैलेंज करना है कि तुम भी अरब हो, ये कुरान भी अरबी में है। तो और इसके अरबी होने की दलील ये है कि इन अरबी के हरूफ से है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, और मुख्तलिफ हरूफ जो शुरू में आते हैं, काफ हा या आइन सा या आइन साद वगैरह। तो ये कुरान इन अरबी के हरूफ से हैं और तुम भी अरब हो, तो इससे अच्छा फिर कुरान लाओ, 10 सूरतें लाओ, कम से कम 1 सूरत लाओ। तो उस चैलेंज का जो चैलेंज किया गया था उसकी दलील और उसकी सदाकत पेश की गई है कि कुरान अरबी में है, तो इसलिए तुम भी इस तरह के ला के दिखाओ। तो ये है इन हरूफ का मकसद। बाकी ज़ाती तौर पर इसका माना हम जैसा बताया है, कई बात रहा था कि उसका माना नहीं है, इस तरह ये भी उन हरूफ में से हर्फ है। मा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं उस किताब की, उस कुरान की जो अल मुबीन है। मुबीन का माना कि खुद भी उसकी हर चीज़ वाज़ेह है, खुली है, उसमें किस्सा का कोई उलझाओ पल पेच नहीं, बल्कि हर चीज़ वाज़ेह है और हर चीज़ को वाज़ेह करने वाला और खोलने वाला है। मुबीन के दो माने कि कुरान खुद भी वाज़ेह है और वाकई ही कुरान वाज़ेह है, कुरान बड़ा आसान है, और बल्कि इस कायनात में कुरान से बढ़कर कोई आसान किताब नहीं है। उसके आसान होने की दलीलें आपके सामने हैं। और तो और अरबों का तो इसको कुरान को पढ़ना, तिलावत करना, चूँकि उनकी अरबी ज़बान है, उनके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जिनको अरबी से कोई वास्ता नहीं, दूर तक भी अरबी का एक हर्फ भी नहीं जानते, वो भी इस कुरान को ना कि सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि हिफ्ज़ करते हैं, बल्कि बड़े अच्छे से अच्छे अंदाज से इसकी तिलावत करते हैं कि उनको एक हर्फ का माना भी ना आता हो। तो इस बात की दलील है, और दुनिया की मेरे ख्याल कोई ऐसी किताब नहीं, ये तो बहुत बड़ा कुरान है, बहुत बड़ी किताब है, कोई छोटी सी 10 सफ़े की 20 सफ़े की ऐसी किताब नहीं कि जिसको आदमी बगैर समझे जो है उसको हिफ्ज़ कर दे, बल्कि बगैर समझे पढ़ता ही नहीं आदमी। लेकिन इस कुरान की अजीब ये खसूसियत है कि इसकी समझ बूझ नहीं होती, पता नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं होता कि हम क्या सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कुरान को पढ़ने वाले आपको मिलेंगे। हमारे बड़े बूढ़ी माएँ आप देखोगे बाल औक़ात उनको और तो और अपनी ज़बान भी नहीं आती होती, अपनी उर्दू ज़बान वो भी उनको नहीं पढ़ना आती, लेकिन कुरान की तिलावत कर रही होती। इससे बढ़कर इस कुरान की आसानी का और क्या उसकी दलील होगी। जहाँ तक इसके मानी की तरफ आते हैं, हमने अरबी की किताबें पढ़ी हैं, अरबी के मुख्तलिफ यानी कि जो अंदाज होते हैं वो देखे हैं। यकीन करें कि कुरान से बढ़कर को हमने आसान किताब नहीं पढ़ी, इसके समझने के हवाले से। और सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, बल्कि हमने देखा है कि किस अंदाज से जब इंसान कुरान पर तवज्जो देता है, इसको समझने की कोशिश करता है, तो चाहे वो कितना भी इल्म से दूर क्यों ना हो, इल्म से कितना भी दूर क्यों ना हो, अल्लाह ताला किस तरह उसके लिए कुरान को उसके लिए उसके सीने में उतारता है, उसको समझ आती है और उसको पढ़ता और समझता है। मैं उस बकरियों के चरवाहे को जानता हूँ कि जो ऐसी ज़बान से ताल्लुक़ रखता था जो उर्दू में नहीं है, उसकी अपनी कोई दूसरी ज़बान थी जो अरबी से बहुत दूर थी। हमारे पास आया, कहता है मैं कुरान सीखना चाहता हूँ। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान सीखा, उसने तिलावत सीखी, कुरान के मानी तर्जमा सीखा, इसकी तफसीर, इसके मानी जाने, और चंद सालों के बाद बकरियों का चरवाहा ना कि कुरान पढ़ रहा था बल्कि लोगों को कुरान पढ़ा रहा था, बल्कि लोगों को कुरान की तफसीर बता रहा था। यहाँ तक इस कुरान की आसानी का बयान, अगरचे हमारे यहाँ इस कुरान से लोगों को दूर करने की तरह तरह की साजिशें होती हैं। वो हमें याद है, एक महफिल मजलिस में एक बैठे हुए किस्से कहानी इधर उधर की सुना रहे, झूठे सच्चे। तो मैंने उनको थोड़ा समझाया कि आप इस तरह के किस्से कहानी सुनाने के बजाय लोगों को कुरान का तर्जुमा पढ़ाएं, बेचारों को कुरान की नहीं समझ, इनको कुरान का तर्जुमा बताएं कुछ। तो हज़रत साहब कहने लगे कि इनको कुरान का तर्जुमा पढ़ा के मैं गुमराह नहीं करना चाहता, ये उसके अल्फाज थे।
इनको कुरान का तर्जुमा पढ़ा के इनको गुमराह नहीं करना चाहते हैं कि गुमराह कैसे गुमराह? कहता है कुरान अल्लाह का कलाम है, अरबी ज़बान है, इसको समझने के 70 किस्म के इल्म चाहिए, ये आम लोग कैसे समझेंगे? मैं कि तुम्हारी बातें हैं वो बातें हैं जो सिर्फ लोगों को कुरान से दूर करने की हैं। हमने जो अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखा है वो एक नहीं, 10 नहीं, दसियों बल्कि सैकड़ों लोग कि जो हमारे पास आए अल्लाह के फजल से कुरान सीखने के लिए, कुरान समझने के लिए, और कुछ अरसे के बाद ही मैं आपको चरवाहे की मिसाल दी है, कोई इस तरह की एक मिसाल नहीं, दसियों मिसालें हमारे सामने हैं। अल्लाह के फजल से ना कि कुरान को समझते हैं बल्कि लोगों को समझाने के लायक हो जाते हैं। हालांकि इल्मी लिहाज से देखा जाए तो शायद उनके पास कोई स्कूल की क्लास भी ना उन्होंने पढ़ी। तो कहने का मकसद ये किस बात की दलील है कि कुरान कितना आसान है, लेकिन सिर्फ कुरान से लोगों को दूर करने की जो साजिशें की जाती हैं कि ये अल्लाह का, कोई शक नहीं अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इस बात के पीछे जो असल साजिश है क्या है कि इसको समझने के लिए बहुत बड़ा इल्म चाहिए, इसके बगैर आदमी इस कुरान को नहीं समझ सकता। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के फजल से कुरान समझा जाता है, और आपने भी इन चीज़ों को नोट किया होगा। तो बात कर रहे थे कि कुरान जो खुद भी वाज़ेह है, बयानशुदा है, और चीज़ों को बयान करता खोलता है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, इन्ना बेशक हमने अंज़लनाहु नाज़िल किया इसको, इस कुरान को, कुरआनन, कुरान अरबी ज़बान में, कुरान अरबियन अरबी ज़बान में कुरान, या कुरान अरबी में। अब कुरान का माना क्या है, अरबी का माना क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कुरान का माना क्या है, लफ्ज़ तो हमेशा ज़बान पे हमारे रहता है, कहते सुनते पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे भी, कोई हिंदू पूछे आपसे भी आपके यहाँ कुरान है, कुरान का माना क्या है? हाँ, कुरान के लफ्ज़ क़रा से है कि जिसको पढ़ा जाए। तो कोई शक नहीं कि कायनात में कुरान से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब नहीं, कायनात में। हत्ता कि बाइबलें वगैरह जो ईसाई क्रिश्चियन जिनकी आबादी बहुत बड़ी दुनिया के अंदर, हाँ वो भी आप देख तो कितने क्रिश्चियन पढ़ते होंगे अपनी बाइबल। तो कुरान ना कि सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि सीनों में महफूज किया जाता है। तो दुनिया में कोई बल्कि कायनात में शायद इस कुरान से बढ़कर कोई ऐसी किताब नहीं जो पढ़ी जाती हो। इस तरह कुरान का दूसरा माना है चीज़ों को जमा करने वाला, और वाकई कुरान में अल्लाह ने किस अंदाज से हदायत के लोगों के फ़ायदों की चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, इस किताब के अंदर जमा कर दिया है। तो ये कुरान। और अरबी का माना क्या है? आप कहोगे अरबी ज़बान है, अरबी ज़बान का नाम है, जैसे उर्दू ज़बान का नाम है, लेकिन हर लफ्ज़ का कोई माना तो होता है ना। अरबी ज़बान का माना क्या है? अरबी ज़बान का माना कि जो हाँ जो बिल्कुल वाज़ेह हो, खुली हो, और जिसमें इंसान अपने माफ़ी ज़मीर का इज़हार करे। अरबी में कहते हैं आरबा अम्मा फ़ी नफ्सिही, कि उसे जो उसके दिल की बात थी उसको खोल कर बयान किया, वो क्या आरबा अरबी ज़बान से। तो अरबी का माना क्या है कि जो बड़ी खुली वाज़ेह ज़बान हो, बड़ी फसीह हो, बलीग़ ज़बान हो। और वाक़ई ही इसमें कोई शक की बात नहीं, दुनिया की तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान की जो फ़साहत व बलागत है, इस ज़बान की जो वुसअतें हैं, इस ज़बान की जो गहराइयाँ हैं, वो अरबी दान जानते हैं। अरबी दान जानते हैं कि अरबी ज़बान की क्या गहराइयाँ हैं। एक एक चीज़ के 100 नाम होते हैं, घोड़े के, शेर के 100 नाम मिलेंगे आपको। अच्छा, एक एक लफ्ज़ के कई माने हैं, एक एक चीज़ के कई नाम, और फिर एक एक लफ्ज़ के कई माने। तो ग्रामर के एतबार से देखो, आपने उर्दू भी पढ़ी होगी, इंग्लिश भी साथियों को आपको आती होगी। आम तौर पर 6 तरह की ज़मीरें या 6 तरह के सेंटेंस होते हैं, अरबी में 12-14 है, समझे ना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अरबी ज़बान जो है, इसकी फ़साहत व बलागत, इसकी जो चाशनी लज्जत है, वो हकीकत में दुनिया की किसी ज़बान के अंदर नहीं है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो फजीलत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर, और उसको फजीलत दी इस उम्मत को इस कुरान को नाज़िल करके, और उसको भी अरबी ज़बान में। और इसलिए आखिरत में जिस तरह के बाद रिवायात में है, जन्नत वालों की ज़बान में क्या होगी? अरबी होगी। इससे पता चलता है कि वाकई दुनिया की अफजल तरीन ज़बान अरबी ज़बान है। तो हमने इस कुरान को नाज़िल किया अरबी ज़बान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको समझो। कि कुरान सबसे पहले किन को मुखातब था? अरबों को। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अरबों की आसानी के लिए कुरान अरबी में भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे,
ताकि किसी को ये बहाना उधर ना हो कि हम तो भी इस बात को समझते नहीं, हम कैसे इससे हदायत पाएँ। तो इसी तरह से हर नबी, हर उम्मत पर अल्लाह ताला जो शुरू में किताब नाज़िल करता है, उस कौम की ज़बान में नाज़िल करता है। सूरह इब्राहीम में फरमाता है, "मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही", कि हम जिस नबी को रसूल को भेजते रहे उसी कौम की ज़बान से, उसी कौम की ज़बान से नबी होता, ताकि लोगों के लिए नबी से बातचीत करना, फ़हम तफ़हीम करना, उसको समझना आसान हो, और नबी पर किताब नाज़िल होने वाली भी उसी कौम की ज़बान में होती। तो इसलिए माता अल्लाह ताला कि हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में भेजा, ताकि किस लिए, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको समझो। लेकिन कहने वाला कहेगा ठीक है, अरबों के लिए तो हुज्जत है, अरबों के लिए तो अरबी समझ आती है उनको तो, लेकिन हमारे लिए तो ये कुरान फिर हुज्जत ना हुआ कि हमारी ज़बान तो अरबी नहीं है। तो हमने ज़िक्र किया है कि हर कौम में हर रसूल के ऊपर, यानी कि उसी कौम में रसूल भेजा जाता है जो उस कौम की ज़बान होती, उसी ज़बान में उनके ऊपर किताब नाज़िल होती। उसके बाद फिर उस किताब को आगे बयान किया जाता, उसकी ट्रांसलेशन होती, और या लोग उस ज़बान को सीखते या उस किताब को लोगों की ज़बान में ट्रांसलेशन उसकी की जाती, जिस तरह कि कुरान करीम के साथ है। इससे पहले क्या था कि लोग अरबी सीखते थे, कुछ अर्सा पहले तक लोग अरबी सीखते थे, और ये हकीकत है। आप अगर और तो और सिर्फ पाक हिंदुस्तान की, या जो हिंदुस्तान पहले का है, इससे 200-300 साल पहले का, उसकी तारीख उठा कर देखें, शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो कि जिसको अरबी ज़बान से कोई वास्ता ना हो। पढ़ा लिखा मुसलमान अरबी ज़बान नहीं जानता होता था। हाँ, जो अनपढ़ थे वो तो खैर अपनी ज़बान नहीं जानते। पढ़ा लिखा मुसलमान हो और उसके अरबी ज़बान ना आती हो, ऐसा नहीं होता था। इसका माना कि लोग अरबी ज़बान सीखते थे, किसी भी कौम से ना होते, किसी भी ज़बान के होते, अरबी सीखते ताकि अपने दीन को समझें। ये तो सिर्फ काफ़िरों के मुल्कों, मुसलमान मुल्कों पर कब्ज़ा करने के बाद उसके जो नताइज निकले कि अरबी से हमको दूर करके उसकी जगह पर इंग्लिश ला दी गई, और फिर हमें इस अंदाज से दीन से भी दूर किया गया। अरबी से दूर होने के साथ जो गलत उसके जो असरात होते हैं, जो उसके नताइज निकलते हैं। तो खैर बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को अरबी में नाज़िल किया ताकि लोगों की समझ बूझ में आए और इसको पढ़ना आसान हो। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि बेशक हम आप पर बयान करते हैं बहुत अच्छा बयान करना। बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन, कि जो हमने आपके ऊपर इस कुरान में नाज़िल किया है, व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और अगरचे आप इससे पहले इन चीज़ों के बारे में बेखबर थे। तो माता अल्लाह ताला कि हम आपके ऊपर सबसे बेहतर बयान करते हैं। बयान करने का माना जो साबिक़ा वाक़यात हैं, किस्से हैं, वो कुछ शक नहीं कि कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा किस्सों पर मुश्तमिल है, साबिक़ा कौमों के, साबिक़ा अंबिया के वाक़यात पर मुश्तमिल है। अगर कोई हम दूर ना जाएँ तो शायद कहा जा सकता है कि कुरान का चौथा हिस्सा कम से कम, कि जो साबिक़ा उम्मतों के वाक़यात, अंबिया के वाक़यात, उन पर मुश्तमिल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद के अंबिया और उनकी कौमों के मामलात और इन चीज़ों पर, तो कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि लोगों को सिर्फ नज़रियाती बातें बताना काफ़ी नहीं होता, बे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करोगे तो वो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। बल्कि हमें आम ज़िंदगी के अंदर भी हम जब किसी को बात समझाते हैं तो बात समझाने के साथ साथ उसको कुछ वाक़यात भी बताते हैं, भी हमने जो बात आपको बता रहे हैं इसकी हकीकत ये है कि फ़लाँ आदमी ने काम किया, उसको ये कुछ मिला, फ़लाँ आदमी ने काम न किया, इसके ख़िलाफ़ चला तो उसके नुकसान हुआ। ये वो अंदाज़ जो लोगों को समझाने का बहुत बड़ा एक अंदाज़ रहा है, और ये अंदाज़ कुरान करीम का है। ये अंदाज़ कुरान करीम का है कि जब कुरान लोगों को वाज़ नसीहत करने के लिए आया है, समझाने के लिए आया है, तो सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं समझाता, उसके बाद साथ-साथ बल्कि वाक़यात बताता है, हक़ाइक़ वाज़ेह करता है, तारीख़ी मिसालें पेश करता है। देखो फ़लाँ कौम ने ईमान लाए, अल्लाह के हुक्म पर चले तो उनको क्या इनामात दुनिया के अंदर मिले, और फ़लाँ कौम ने नाफ़रमानियाँ की तो उनके क्या अंजाम हुए। तो कुरान का इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन वाक़यात पर मुश्तमिल है, जिन वाक़यात का मकसद जो है कोई दिल लगी नहीं, टाइम पास करना नहीं, जिस तरह कि आम किस्से कहानियों का टाइम होता है वहाँ मकसद, बल्कि इस कुरान के वाक़यात का मकसद जो है सबक दिलाना, इबरत दिलाना और हक़ाइक़ खोल कर वाज़ेह करना, जिससे लोगों के शक व शुबहात दूर हो। तो अल्लाह फरमाता है कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि बेशक हम आप पर बयान करते हैं सबसे बेहतर बयान करना। और कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई वाक़या बयान होता है, कोई हकीकत बयान होती है, तो उससे बेहतर कोई नहीं है। बेहतर ना होने का अंदाज़, एक तो उससे बढ़कर कोई सच्ची चीज़ नहीं है।
उससे बढ़कर कुछ सच्चा वाक़या आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ भी वाक़यात चलते हैं, तरह तरह के वाक़यात जो लोग मजलों में महफ़िलों में बैठ के एक दूसरे को बताते रहते हैं। वाक़या कहाँ से चला था, किधर से आया था, कुछ पता नहीं होता। ना किसी उनका ना मुँह होता, ना कोई सर होता, ना कोई पाँव होता है। कुछ पता नहीं कहाँ से आया, किधर से गया। ऐसे ही उड़ती बातें। लेकिन कुरान जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर कौन बेहतर जानता है कि क्या चीज़ कैसे हुई थी। फ़र्ज़ कर नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात हम पढ़ते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात कैसे पेश आए थे, तारीख़ में पढ़ें। तारीख़ों में अगर कुरान से हटकर तारीख़ें हैं तो आपको अजीब हो गई, किससे कहानियाँ मिलेंगी। जो अकल ही उनको ठुकरा रही होगी, अकल ये मानेगी कि कैसे होगा। लेकिन कुरान उनके हक़ाइक़ को खोलता है कि असल वाक़या वो क्या था, क्योंकि रब्बुल आलमीन से बढ़कर उन चीज़ों को कोई नहीं जानता। तो उनके अहसन होने का बयान, एक तो उनकी सच्चाई, सदाकत, दूसरा उनको बयान करने का अंदाज़। और वाक़ई कुरान ने चीज़ों को, हक़ाइक़ को जिस अंदाज़ से बयान किया है, आपको किसी किताब में वो उस अंदाज़ से नहीं मिलेगी। हत्ता कि बाइबलों के अंदर भी, बाइबलों में भी आप देखोगे मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया हुआ, उसके अंदर ऐसी बेहूदगी आपको मिलेगी कि आदमी औरों के सामने तो पढ़ना, खुद पढ़ के शर्मा जाता है। ऐसे अजीब-ओ-गरीब अंदाज़, बेहूदगी उसके अंदर। लेकिन उन्हीं चीज़ों को कुरान ने ज़िक्र किया है, और कुरान का अंदाज़ देखो, उसको बयान करने का अंदाज़ क्या है। तो कहने वाला क्या है कि बाइबल भी तो ये भी आसमानी किताबें हैं। हाँ, आसमानी थी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, जो उन्होंने बिगाड़ी। तो इसलिए कुरान का किस्सों का, कुरान के वाक़यात, एक तो सिद्क़ और सच्चाई, और दूसरा उनको बयान करने का जो अंदाज़ है, और तीसरा जो सबसे बड़ा, उसके अंदर इबरत और सबक रखे हैं। बिमा औहयना इलैका हाज़ा कुरान, जो हमने आप पर वही किया, ये कुरान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़यात कैसे मालूम हुए? इस वही के ज़रिए से, इस कुरान में आने की वजह से। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, अगरचे आप इससे पहले लमिनल गाफ़िलीन, गाफ़िल के माने क्या होता है? किसी चीज़ से बेखबर होना। अगरचे आप इससे पहले इन वाक़यात, इन चीज़ों के बारे में बेखबर थे। तो क्या वाक़ई ऐसा था? कुरान करीम अल्लाह ताला का फ़रमान है, इसमें कोई शक तो नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, क्या वाक़ई ही कुरान के इन वही आने से पहले इन वाक़यात से बेखबर थे। और ख़ुसूसन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुरैश को, अरबों को तो इनको पता ही नहीं था। अरब के कुरैश वगैरह को तो इसके वाक़ये को पता ही नहीं था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या था, उसकी क्या हकीकत थी। हाँ, यहूदियों के यहाँ, जिनके पास तौरात, इंजील वगैरह थी, उनके यहाँ कुछ इस वाक़ये की तफ़सीलात थी, लेकिन वो भी तरह तरह के झूठ, तरह तरह के गलत बयानियाँ, तरह तरह के हक़ाइक़ से बिल्कुल दूर चीज़ें। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर उन वाक़यात को हकीकत में बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चूँकि आप यहूदियों से आपका मेल-जोल कब शुरू हुआ है? हिजरत के बाद। हिजरत करने के बाद मक्का में जब तक थे, उस वक़्त आपका किसी यहूदी, किसी नसरानी के साथ कोई वास्ता नहीं था। आप सिर्फ़ उसी आदमी के माहौल में थे। तो इसलिए आपको कुछ पता नहीं था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या था, उसकी क्या तफ़सीलात हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि इसलिए आप इससे पहले आप इन चीज़ों के बारे में बेखबर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना कि बेखबर थे, किस बात की दलील है? कि अगर आपको इल्म गैब होता, तो जिसको इल्म गैब होता है वो हर चीज़ पहले से जानता होता है, वो हर चीज़ को पहले से जानता होता है। उसको पता होता है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात क्या थे, उसके बाद के वाक़यात क्या थे। लेकिन कुरान करीम में जगह-जगह अल्लाह ताला ने आप सबके के हवाले से इसकी ज़िक्र किया, यहाँ पर भी फरमाया है और दूसरी जगह पर फरमाया है कि इनके ना आप इन चीज़ों को जानते थे, ना आपकी कौम इन चीज़ों को जानती थी। मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान, आप नहीं जानते थे कि ईमान क्या होता है, किताब क्या होती है। ये तो अल्लाह की वही के साथ आपको इन चीज़ों का इल्म हासिल हुआ है। तो अल्लाह ताला के ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला का आपको दिया हुआ है, कि जिससे आपको इन चीज़ों का इल्म हो रहा है। अगर यहाँ से इंशाअल्लाह हम अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू करेंगे कि उनका वाक़या क्या था, किस अंदाज़ से शुरू होता है, और क्या ख्वाब उन्होंने देखा था, कि जो ख्वाब जो है उनके जो पूरी आगे ज़िंदगी का जो है, उस पर उनके वाक़या किस्से का आगे उसका आगाज़ होता है। बारक अल्लाह फ़ीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर।